Point number 2. The product of a company passed through 3 distinct processes to completion. From the past experience, it is ascertained that normal wastage in each process is as under. Process, wastage and sale value of wastage. Process A 2% 25 paise per unit, B 4% 50 paise per unit and C 2.5% 60 paise per unit. The expenses were as follows. Process A, B, C. Material 12,000, 10,000, 9,000. Direct labor 16,000, 5,000, 4,900. Manufacturing expenses 2,000, 3,400, 3,590. Other factory expenses 3,500, 2,005, 2,004. 4,000 units were initially introduced in process A at a cost of 13,560. 4,000 units were initially introduced in process A at a cost of 13,560. The output of each process was as follows. Output of ABC process 3,850 units, 3,600 units and 3,560 units. अच्छा वो आउटपुट एंड प्रोसेस उल्टा हो गया, वो प्रोसेस ABC होना चाहिए था एंड आउटपुट क्वांटिटी 3,850, 3,600 and 3,560 units. Anyway, prepare a process account and also work out the sale price per unit of finished stock so as to realize 20% profit on selling price. Prepare a process account and also work out sale price per unit of finished stock so as to realize 20% profit on selling price. तो आपको selling price भी निकालनी है यहाँ पर. Okay, fine. So what you have to prepare is all the process account plus normal loss, abnormal gain. दिया है क्या प्रॉब्लम में? नहीं, फिर भी करना ही है. ठीक है? Write down. Process A, B, C. Here are problem number 2. Process A account. Normal loss, abnormal loss accounts. So particulars quantity amount of column आप कर लीजिए. क्या दिया है यहाँ पर आप देखिए. सबसे पहले in the after the second statement 4,000 units were initially introduced in process A at a cost of rupees 13,560. So here process A में आएगा to material 4,000 units 13,560. Then complete all the information of process A. यहाँ पर और जो मटेरियल लगा है that is to material 12,000, then to direct labor 16,000,
then 2 manufacturing expenses, 6,000, sorry, it's 2,000. 2 other factory expenses, 3,500. And in the process A, there is a loss of 2%. So loss of 2%, so credit में जाएगा by normal loss 2%. So 4,000 का 2% is 80, and what is the scrap value is 25 पैसे, 25 पैसे. So 80 into 25 पैसे is rupees 20. अब देखिए 4,000 मेरा इनपुट है, 80 मेरा नॉर्मल लॉस है, इसका मतलब मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट 3,920, 3,920, लेकिन आउटपुट ऑफ प्रोसेस ये कितना है 3,850. 3,920 के अगेंस्ट 3,850, मतलब 70 क्या है abnormal loss. So here I will say by abnormal loss 70 units and by process B account 3,850. बस इन दोनों का हमको वैल्यूएशन फाइंड आउट करना है. प्रोसेस बी को मैं डेबिट करके रखता हूं टू प्रोसेस ए अकाउंट 3,850 एंड एब्नॉर्मल लॉस को डेबिट टू प्रोसेस ए अकाउंट 70 यूनिट्स. नॉर्मल लॉस को भी डेबिट कर देता हूं टू प्रोसेस ए अकाउंट 80 at rupees 20. So first find out net cost per unit. So working note करनी पड़ेगी आपको. Working note number 1, process A. In that net cost per unit is equal to, सभी की टोटल कर दीजिए डेबिट में. इट इज 13,560 प्लस 12,000 प्लस 16,000 प्लस 2,000 प्लस 3,500 माइनस 20 डिवाइडेड बाय नेट क्वांटिटी 4,000 माइनस 80. कितना था आंसर? Exact 12. Okay, so it is rupees 12. So here abnormal loss is equal to 70 units into rupees 12 is rupees 840. Then process B को ट्रांसफर जो किया, it is 3,850 units into rupees 12. ये कितना आता है? 46,200. Is it? चेक कर लीजिए. बराबर है ना? चलिए इसका पोस्टिंग लिखा जाएगा. एबनॉर्मल लॉस का डेबिट आएगा. दिस इज 840. यहाँ इसका 840. ऑन स्टॉक इज ट्रांसफर का आएगा 46,200 एंड हियर प्रोसेस बी में आएगा 46,200. ठीक है. देन फिर आगे प्रोसेस बी में करेंगे अब काम. प्रोसेस बी के लिए टू मटेरियल 10,000. क्वांटिटी में कुछ नहीं लिखना आप. देन टू
direct wages 5,000, then 2 manufacturing expenses 3,400, 2 other factory expenses 2,005. Then by normal loss, by normal loss 4%, 3,850 का 4%, 154, 154, इसका 50 पैसा per unit, so 154 into 0.5 is 77. So normal loss को debit to process B account 154.77, और यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट जो है प्रोसेस सी को ट्रांसफर इट इज 3,600. सो बाय प्रोसेस सी अकाउंट 3,600. अब जरा देखिए 3,850 में से 154 गए, मतलब 3,696 है ना. 3,696 यूनिट्स प्रोड्यूस होने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल 3,600 है, मतलब अगेन देयर इज एबनॉर्मल लॉस. कितना 96 यूनिट्स. 3,696 का एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है, लेकिन एक्चुअल में 3,600 हुआ, मतलब 96 इज एबनॉर्मल लॉस. सो ये एबनॉर्मल लॉस, इसका वैल्यूएशन आएगा. सो अगेन शो द वर्किंग नोट. वर्किंग नोट नंबर 2, नेट कॉस्ट पर यूनिट. वर्किंग नोट नंबर 2, process B. Net cost per unit 46,200, 10,000, 5,000, then 3,400, 2,005 and minus 77. Net quantity 3,850 minus normal loss की quantity 154. कितना आया रुपीज 18. Then so here I can say abnormal loss 96 units into rupees 18, 1,728, and process C को जो ट्रांसफर हुआ वो 3,600 into rupees 18, 64,800. 64,800. Please check, please write down. So write down here abnormal loss 1,728 and process is 64,800. So यहाँ से process C को debit to process B account 3,600, 64,800 and M1 loss को debit to process B account 96 units
1728. देन प्रोसेस सी को कंप्लीट करेंगे अब. इट इज टू मटेरियल कितना है 9000. देन टू डायरेक्ट लेबर 4900. Then to manufacturing expenses 3590. Then to other factory expenses 2004. क्रेडिट में आएगा सबसे पहले बाय नॉर्मल लॉस 3600 और यहाँ हम एक्सपेक्ट करते 2.5%. सो 3600 का 2.5% कम्स टू 90 ना 90 यूनिट और इसकी स्क्रैप वैल्यू है 60 पैसा पर यूनिट. सो 90 इंटू 60 पैसा मतलब ₹54. तुम्हारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है 3600 माइनस 90 3510 3510 और हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन है 3560. 3560 हमारा प्रोडक्शन है मतलब इस बार क्या है एबनॉर्मल गेन कितने यूनिट्स का 50 का गेन है ना. सो हियर आई कैन से बाय फिनिश गुड्स अकाउंट 3560 और डेबिट में उसको लेना पड़ेगा टू एबनॉर्मल गेन it is 50. Again you have to do the valuation. So बनाइए working note number 3 cost per unit. So working note number 3 process C net cost per unit. So डेबिट की सारी कॉस्ट दीजिए 64,800 प्लस 9,000 प्लस 4,900 प्लस 3,590 प्लस 2004 माइनस 54 divided by 3600 minus 90 units. नॉर्मल लॉस के 90 यूनिट्स. सो कितना थी नेट कॉस्ट एग्जैक्ट 24. ओके ₹24. देखिए अगर समझो यहाँ पर कभी आंसर फ्रैक्शन में आए ध्यान रखिए कभी आंसर फ्रैक्शन में आए ना तो कम से कम 4 डेसिमल पॉइंट तक आंसर लेना फिर अप टू 4 डेसिमल पॉइंट. फॉर्चुनेटली अपने पहले दोनों प्रॉब्लम में बिल्कुल राउंड अप फिगर आई है. कभी अगर आपका फ्रैक्शन में आ जाए जिसके बहुत चांसेस होते हैं अगले स्टेप में जब हम काम करेंगे तब. सो डू द वर्किंग एटलीस्ट अप टू 4 डेसिमल पॉइंट तो फिर एक्यूरेसी करेक्ट आती है. नहीं तो फिर अकाउंट जब टैली करने जाते हैं ना 2-4-10 रुपए का फर्क आता है फिर. एनीवे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी 24. सो यहाँ पर आप लेंगे एबनॉर्मल गेन इट इज कितने एबनॉर्मल 50 यूनिट्स into rupees 24 is rupees 1200 and finished goods it is 3560 into rupees 24 कितना 85,440 is it. So write down बोलो एग्जैक्ट है ये फ्रैक्शन है
चेक करके देख लो, आंकड़े तेरे सामने है और उन्होंने काफी केयर लिए, यहाँ पे 2004 और ये 54 आता है, तो दिस सिम्स टू बी फैब्रिकेटेड प्रॉब्लम। चेक कर ले, ये 24 है ना, और एक वर्चुअल में सभी आंसर 24 ही कह रहे हैं। डिवाइड बाय कितना किया 3510, तो डिवाइड गलत फिगर से कर रही है। गलत, तेरा 4 को 4 आ ही नहीं सकता एंड में, तेरा टोटल फिगर के 4 में 4 आ ही नहीं सकता, तो 54 लेस करना। अरे वाह, बट स्टिल उसका कॉन्फिडेंस बड़ा स्ट्रांग था, सर आंसर गलत है आपका। खैर हो गया। सो हियर फिनिश गुड्स के लिए लिखेंगे 85,440 और ये डेबिट में आएगा। 50 यूनिट्स के लिए वैल्यूएशन 1200। क्या ये अकाउंट आपका टैली हो गया? ये सभी अकाउंट्स टैली आपके यहाँ? नॉर्मल लॉस को डेबिट टू प्रोसेस सी अकाउंट 9054 एंड एबनॉर्मल गेन को क्रेडिट बाय प्रोसेस सी अकाउंट 50 यूनिट्स 1200। गॉट इट? अब हमें ये अकाउंट्स कंप्लीट करने हैं, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। बताइए प्रोसेस में किसी को कोई डाउट, एनी डिफिकल्टी? इज इट? नो। आइए नॉर्मल लॉस। अब देखिए प्रोसेस एबनॉर्मल लॉस, देखिए एक बार पहले ए एंड बी में एबनॉर्मल लॉस है, मतलब नॉर्मल लॉस के आगे लॉस हुआ है हमारा। इसका मतलब नॉर्मल लॉस में प्रोसेस ए और बी का जितना भी लॉस है वो पूरा का पूरा आपने बेचा ही है, बराबर ना? क्योंकि प्रोसेस ए में एबनॉर्मल लॉस है, मतलब 80 तो एक्सपेक्टेड था, 70 और हो गया, मतलब 80 हुआ ही हुआ है, प्लस 70 भी हो गया, मतलब ये दोनों आपके सेल किए जाएंगे। सो लिख दिए बाय कैश 80/20। ये प्रोसेस बी बाय कैश। प्रोसेस बी में एबनॉर्मल लॉस भी है, मतलब जो नॉर्मल है 150 वो तो हुआ है, ऊपर से 96 भी है, मतलब ये दोनों बेचे जाएंगे। सो बाय कैश 154.77। लेकिन जहां तक नॉर्मल लॉस प्रोसेस सी 90 यूनिट्स, ये जो 90 है, हालांकि प्रोसेस सी में एबनॉर्मल गेन है, मतलब मैं जहां नॉर्मल लॉस एक्सपेक्ट करता हूं 90, वहां पर मेरा एक्चुअल में गेन है 50 का। इसका मतलब एक्चुअल स्क्रैप यूनिट कितने प्रोसेस सी के? कितने? 40 यूनिट सिर्फ एक्चुअल में लॉस है। आप देख सकते हैं यहां पर, सी हियर प्रोसेस सी में 3600 एंड आउटपुट इज 3560। सो देखिए 3600 3560 कितना लॉस हुआ? सिर्फ 40 का। हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 90, मतलब 50 मेरा गेन है। इसका मतलब 90 जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, सचिन यहाँ लेना, 90 जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो 90 में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एक्चुअल में मेरा लॉस 90 का हुआ ही नहीं है, उसमें तो 50 तो गुड यूनिट्स है, तो एज अ स्क्रैप करके मैं कितना बेचूंगा? सिर्फ 40 यूनिट्स। सो हियर बाय कैश 40 यूनिट्स एट 60 पैसा ना, ₹24, और बाकी जो 50 यूनिट बचे वो मेरे एबनॉर्मल गेन में गए। सो दिस इज बाय abnormal gain account 50 units at 60 पैसा, that is 30, and abnormal gain को डेबिट हो गया to normal loss account 50 at 30, is it? और
फिर एबनॉर्मल गेन को क्लोज कर दीजिए। एबनॉर्मल गेन में मेरा टोटल गेन 1200 हुआ ही नहीं है, 30 रुपीज का जो है वो मेरा अदरवाइज भी मिलना ही था मुझको, क्योंकि वो यूनिट मुझे एज अ स्क्रैप में बेचना ये पहले से पता ही था, बट फॉर्चुनेटली वो मेरा गुड यूनिट है, इसलिए मैं जो स्क्रैप में नहीं बेचूंगा, मतलब 30 तो मुझको अदरवाइज ही मिलना ही था। सो माई गेन इज नॉट 1200, माई गेन इज ओनली 1170। सो दिस इज टू कॉस्टिंग पी एंड एल 1170। और जो एबनॉर्मल में है लॉस, ये तो मेरी लॉस क्वांटिटी है, मोर देन नॉर्मल लॉस, ये एज अ स्क्रैप करके बेचा जाएगा। सो एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट बाय कैश 70, ये 70 यूनिट, इसकी क्या थी सेल्स वैल्यू? पॉइंट 0.25, तो 70 इंटू 0.25 17 पॉइंट, ठीक है 18 रुपीज कंसिडर कीजिए अब उसको। एंड बाय कैश 96 यूनिट, 60 पैसा था ना शायद इसकी, अच्छा 0.5, तो अमाउंट कितनी आती है 48। खैर चलो ये मेरा लॉस हुआ, लेकिन कम से कम ये स्क्रैप के ये पैसे तो मिल ही गए। सो डिफरेंस इज बाय कॉस्टिंग पी एंड एल। $2,502 2,502 by costing P&L 2,502। I hope this is clear। अब थोड़ा और ज्यादा क्लियर हुआ होगा, फर्स्ट प्रॉब्लम में भी 80-90% क्लियर, बट नाउ दिस टाइम एवरीथिंग इज क्लियर। किसी को कोई डाउट? तेरा आ गया 24 आ गया, ओके पूरा दिखाओ सचिन एक बार। Come to the next number 3। किसी को डाउट नहीं ना?